بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام کی وہ معجزاتی، آفاقی اور کراماتی شخصیت ہے جس کی فضیلت اور عظمت کے قصیدے تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا جاد، بھائی، حقیقی وارث اور وصی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ آپ علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، زینب اور ام کلثوم کے پیدر ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب یعنی عمران اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ تاریخوں اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تخلیق نور محمدی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل میں آپ کا ظہور، آپ کی ولادت 13 رجب بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا سال ہجرت کے پہلے سے دیکھا جائے تو 21 BH ہے۔ انگریزی تاریخ کے مطابق سن 600 یا 601 ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ پیدا ہوتے ہی آپ امام علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں لیا، منہ میں اپنی زبان دی، لعاب دہن رسول سے سیراب ہو کر آپ علی مرتضیٰ لحمی کے حقدار بن گئے۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد صحابہ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد المطلب کی اولادوں نے اسلام ظاہر کیا اور اسی کے بیچ میرے مولا کعبہ میں فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ آپ حضرت علی پیدا ہوتے سے ہی رسول اللہ کے سائے میں پلے، لیکن وجہ ضرورت آپ نے 10 سال کی عمر میں اعلان ایمان کیا۔ میدان جنگ میں کامیابیاں پا کر آپ کل ایمان بھی بنے۔ آپ کی کنیت اور القاب بے شمار ہے۔ کنیت میں ابو الحسن اور ابو تراب زیادہ مشہور ہیں۔ القاب میں امیر المومنین، علی مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، حیدر کرار، مولائے کائنات، نفس رسول، وصی رسول، ولی اللہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا رنگ رمی، آنکھیں بڑی، سینے پر بال، قد میانہ، داڑھی گھنی اور بڑی تھی، دونوں شانیں کہنیاں اور پنڈلیاں پرگوشت تھیں۔ شیر کے کندھوں کی طرح آپ کے کندھوں کی ہڈیاں چوڑی تھیں۔ آپ کی گردن سراہی دار اور آپ کی شکل بہت ہی خوبصورت تھی۔ آپ کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کھلی رہتی تھی۔ آپ حجاب نہیں لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت علی کو اپنی نفس کہا، کبھی سید العرب کہا، کبھی سید المومنین کہا، کبھی سید المتقین کہا تو کبھی سید المرسلین کہا۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ الزہرا کو سید النساء العالمین کہا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا کی اولادوں کو آپ کے 2 بیٹوں کو سید شباب اہل جنت کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ اسلام کے لیے میرے مولا نے بھی جو کیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی ہم اپنی اوقات اور ذرہ برابر علم کے مطابق لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شب ہجرت کے دوران آپ علی علیہ السلام فرش رسول پر سوئے اور اس طرح آپ نے اسلام کی قسمت بیدار کر دی۔ آپ نے اپنی جان کی جوخم میں ڈال کر بھی کئی دن غار میں کھانا پہنچایا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کرنے سے روکنے کی سازشیں رچی جا رہی تھیں، آپ نے ایسی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے، اسلام کو بلندی مل گئی۔ جنگ بدر میں جب صرف 313 مسلمان تھے، کفار بے شمار تھے، آپ نے اپنے کمال جرأت اور ہمت سے کامیابی دلائی۔ جنگ احد کے موقع پر جب بہت سارے مسلمان یعنی صحابہ رضی اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے، اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی اور اسلام کی عزت بھی محفوظ کر لی۔ کفار جن کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، عمر بن عبد ود جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام اور ایمان والوں کو للکارنے لگے۔
पैगम्बर इस्लाम परेशान थे और मुसलमानों को बार बार उबार रहे थे, लेकिन किसी ने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ अली मुर्तजा निकले और जालिम को शिकस्त दी। ये वाक़या ऐसा था कि जिसके बाद खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, आज अली की एक जरबत इबादत सकलैन से बेहतर है। खैबर में भी जब 39 दिन तक कोई खैबर फतह ना कर सका, जहाँ बात सिर्फ शुजाअत की ही नहीं बल्कि सदाकत की भी थी, वहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने मरहब को हराकर खैबर को उखाड़ कर इस्लाम पर एहसान कर दिया। आपके सबसे बड़े 2 एहसान तो ये हैं कि आपने वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर दुख भरे वाक़यात को सहा, सब्र किया, लेकिन तलवार न उठाई, वरना शायद इस्लाम अपनी मंजिल अव्वल पर ही ख़त्म हो जाता। दूसरा सबसे बड़ा एहसान आपका ये भी है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, कभी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कभी हज़रत अब्बास गाजी जैसे बेटे दिए, जिनके दम से इस्लाम बका पा गया और यह सिलसिला औलाद से औलाद चलता ही रहा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बहुत ही खुश अखलाक थे। आप रोशन रो और कुशादा पेशानी रहा करते थे। यतीमों को नवाजना, मजलूम की आवाज़ बनना, मुफलिसों का ख्याल रखना आपकी आदत में शुमार था। फ़कीरों में बैठ कर आपको खुशी मिलती थी। मोमिनों के बीच खुद को हकीर और दुश्मनों के बीच खुद को बारौब रखते थे। जब आप इबादत करते तो तन्हाई में रो रो कर सब रब के सामने खड़े होते और बड़ी इज्जत और अदब के साथ रब की इबादत किया करते थे। घर के कामों में मदद करते, मेहमान नवाजी खुद किया करते। आप कभी मजदूरी करते तो घर की ज़रूरत पूरी करने के साथ साथ कुछ पैसों से गुलामों को भी आज़ाद करवाते। जुल्म आपको पसंद नहीं था। आपने सारे काम आप खुद करना पसंद करते थे। एक खास बात यह भी थी कि आप हज़रत दुनिया को 3 तलाक दिया करते थे, यानी दुनिया में रहते हुए दुनिया को खुद से दूर रखा करते थे। अगर आप कुरान मजीद पढ़कर देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम अंबियाओं के जानशीन रब ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं। रब ने किसी नबी को भी ये हक नहीं दिया कि वह बतौर खुद अपना जानशीन मुकर्रर करते। तो ये बात याद रखें कि जानशीन बनने का हक सिर्फ खुदा को है। अब बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कौन है, आपका जानशीन कौन है। यौम जुमा 18 जिलहिज्जा 10 हिजरी बामुकामे गदीर खुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 असहाब की मौजूदगी में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत, विलायत, इमामत और मौलाइयत का ऐलान आम किया। कुछ लिखने वालों ने अलग तरह से लिखा है, लेकिन इस वाक़ये में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। पहले के दौर में लोग कहा करते थे कि इल्म और शुजाअत एक जगह जमा नहीं होती, लेकिन मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस कौल को भी गलत साबित कर दिया। आपका जिक्र हो और आपकी शुजाअत की बात ना हो तो जिक्र अधूरा लगता है। ठीक ऐसे ही आपकी शुजाअत की बात हो और आपके इल्म की बात ना हो तो भी जिक्र मुकम्मल नहीं होता। आपने जितनी बहादुरी मैदान जंग में दिखाई, उतनी ही बुलंदी इल्म के मामले में भी पाई। आपको इस उम्मत का पहला आलिम और पहला मुसन्निफ कहना गलत नहीं होगा। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह तालीम और तरबियत पाई कि खुद रसूल पाक ने फरमा दिया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो आप मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो कभी आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, यानी मैं दारुल हिकमत हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी खुद इस बात का इजहार किया। एक मौके पर आपने फरमाया, जकनी रसूलुल्लाह जकन, यानी मुझे रसूलुल्लाह ने इस तरह इल्म भराया है जिस तरह कबूतर अपने बच्चे को दाना भराता है। एक मंजिल पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलोनी कब्ल अन तफाकदूनी, मेरी ज़िंदगी में जो चाहे पूछ लो, वरना फिर तुम्हें इल्मी मालूमात से कोई बहरावर करने वाला ना मिलेगा। एक मुकाम पर आपने फरमाया कि अगर मेरे लिए मसनद कजा,
बिछा दी जाए तो मैं तौरात वालों को तौरात से, इंजील वालों को इंजील से, जबूर वालों को जबूर से और कुरान वालों को कुरान से जवाब दे सकता हूँ कि उनके उलेमा हैरान रह जाएंगे। एक दिन आपने फरमाया कि आसमान के बारे में मुझसे जो चाहो पूछ लो कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। एक मौके पर आपने यहाँ तक फरमाया कि खुदा की कसम मुझे इल्म है कि कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, और मैं यह भी जानता हूँ कि खुश्की में कौन सी नाजिल हुई है और तरी में कौन सी नाजिल हुई है, कौन सी दिन में और कौन सी आयत रात में नाजिल हुई है। एक वाक़या और आपके सामने रखना चाहूँगा। एक सब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान फरमाएं। आपने सारी रात तफसीर बयान फरमाई और जब सुबह हो गई तो फरमाया, इब्ने अब्बास, मैं इसकी तफसीर इतनी बयान कर सकता हूँ कि 70 ऊँटों का बार हो जाए। बस मुख्तसर यह समझ लो कि जो कुछ कुरान में है वह सूरह हम्द में है, और जो सूरह हम्द में है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वह बाए बिस्मिल्लाह में है, और जो बाए बिस्मिल्लाह में है वह नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह में हो। आगे आपने फरमाया, वह अनल नक्कतल लती तहतलबा, यानी आपने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से कहा, मैं वही नुक्ता हूँ जो बिस्मिल्लाह के बे के नीचे दिया जाता है। सुनकर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने कहा कि खुदा की कसम, मेरा और तमाम सहाबियों का इल्म अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इतना है जैसे समंदरों के मुकाबले में पानी का एक कुतरा। कुमैल इब्ने जियाद से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कुमैल, मेरे सीने में इल्म के खजाने हैं, काश कोई अहल मिलता कि मैं उसे तालीम कर देता। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि मुसलमान को चाहिए कि इतना कम खाए कि भूख से उनके पेट हल्के रहें, और इतना कम पिए कि प्यास से उनके पेट सूखे रहें, और खुदा के खौफ में इतना रोएं कि आंखें जख्मी रहें। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो पाएंगे हज़रत उमर रजी अल्लाह, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह और काफ़ी सारे सहाबा रजी अल्लाह आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मशवरा लेने आते थे। आप जिसे जो बता देते वह अटल साबित होता। जब आप खलीफा बने तो तब आपने सियासत इस तरह से कि जिस तरह से हुक्म खुदा और हुक्म रसूल में कहा गया है। आप अल्लाह, रसूल और दीन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इल्म, हिकमत, शुजाअत, सदाकत, अदल के मामले में दूर दूर तक कोई आपका सानी नहीं मिलता। आजकल देखता हूँ कि लोग हक छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि किसी को गलत कहो, लेकिन जब आप सही को भी सही कहना छोड़ देते हो या दो आमने सामने खड़े लोगों में दोनों का हक पर बताने लगते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो। यही वजह है कि आज की नस्लों में सही गलत, हलाल हराम समझने की तमीज़ खत्म होती जा रही है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब कोई भी जंग करने आया तो अली हक पर थे और सामने वाला गलत था, चाहे जंग जमल हो, जंग सिफ़िन या जंग नहरवान। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गाली देने वाले, उनसे जंग करने वाले, उनके आशिकों को शहीद करवाने वाले, खुतबों में अली को बुरा कहलवाने वाले, कत्ल उस्मान का इल्ज़ाम अली पर डालने वाले, सुलह हसन को तोड़ने वाले और यजीद के हक में बैत लेने वाले शख्स को भी न सिर्फ सहाबा कहा जाता है, बाकी बहुत सारे उलेमा बेखता तक कहने से नहीं चूकते हैं। तो यह है कि कोई आलिम उस शख्स को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बराबर में तक रख देते हैं। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को न सिर्फ कुफारों से जंग की बल्कि खारजियों के साथ साथ उन मुनाफिकों से भी जंग की जो ईमान का चोला ओढ़ कर उम्मत को धोखा देते थे। आप अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें तो शुरू से ही होती आ रही थी, लेकिन किसी इंसान को इतनी औकात नहीं थी कि अल्लाह के शेर पर वार कर सके। जब आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापा आया, आप जाहिरन कमज़ोर हो गए, तब भी दुश्मन ने हिम्मत न की और आपको मारने के लिए नमाज का वक्त चुना।
40 हिजरी थी, रमज़ान का महीना था। जब 19वीं शब में आप मस्जिद के अंदर इबादत में मशगूल थे, फिर आपने खुद अजान दी और नमाज के लिए लोगों को पुकारा। हद तो ये आपने खुद इब्ने मुलजिम को जगाया। बाद में जब आप नमाज अदा करा रहे थे तब आपके सर मुबारक पर इब्ने मुलजिम ने जहर से बुझी हुई तलवार मारी, जिसके बाद आप 21 रमज़ान को दुनिया से पर्दा कर गए। कुछ लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि सैय्यद अली को अल्लाह मानते हैं। कुछ कहते हैं कि अहले तशय्युअ अली को नबी मानते हैं। जब पढ़ा तो पाया कि शिया तो अली को वलीउल्लाह कहते हैं, वसीय रसूल कहते हैं। हाँ, नुसैरी अली को खुदा कहते हैं, लेकिन नुसैरी शिया नहीं होते। ठीक ऐसे ही जैसे कादियानी सुन्नियों से मिलकर भी सुन्नी नहीं होते। अब सवाल यह है कि क्या अली ही खुदा है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबतुल बयान में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में किसी भी जगह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जात को खुदा या इलाहा नहीं फरमाया, बल्कि आप अली अलैहिस्सलाम इतनी फजीलतों, कुव्वतों, अजमतों में अली होते हुए भी बारगाह इलाही में बड़ी ही जो बंदगी के साथ यह दुआ करते थे, इलाही कफ़ा बिजन अन अकूना लका अब्दन वक़फ़ा बि फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बन अंता कामा उहिब फजअलनी कामा तुहिब। यानी ऐ मेरे माबूद, मेरे इज्जत के लिए ये ही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि मेरा रब तू है। तो ऐसा है जैसा रब मैं पसंद करता हूँ, बस जैसा बंदा तुझे पसंद है वैसा मुझे बना ले। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुद को बंदा कह रहे हैं, ऐसे में उन्हें खुदा कहना दरअसल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सदाकत पर हमला करना है, और मौला को मानने वाला उन्हें कभी झूठा नहीं मान सकता। जो जाहिल लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, वह असल में कुरान के भी मुनकिर हैं, क्योंकि कुरान की सूरा अनआम की आयत 103 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार, यानी जिसकी निगाहें नहीं देख सकते, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा है। इसी तरह कुरान में सूरा इखलास में आता है, लम यलिद वलम यूलद, यानी ना उसकी कोई औलाद है और ना वह किसी की औलाद है, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हसनैन समेत कई बेटे और बेटियां थीं। आप साहिब औलाद भी थे और आपके वालिद भी थे, जिन्हें लोग अबू तालिब के नाम से जानते हैं। कुरान में सूरा बकर की आयत 255 जो आयतुल कुर्सी कहलाती है, उसमें आता है, ला तखा जो हुसीनतुन वला नौमुन, यानी उसको ना ही ऊँघ आती है और ना ही नींद, जबकि मौला अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं शब-ए हिजरत की रात रसूलुल्लाह के बिस्तर पर इतनी गहरी नींद सोया जितनी पहले कभी नहीं सोया था। लिहाजा हज़रत अली को खुदा मानने वाले गुमराही में हैं, और वही ही हैं जिनके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक जमात मेरी मोहब्बत में हद से ज़्यादा बढ़कर भी हलाक होगी। मेरा अल्लाह एक है, वह ही माबूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और रसूल हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बंदे अल्लाह हैं, वसीय मोहम्मद हैं, गुलाम मोहम्मद हैं, वफ़ादार मोहम्मद हैं। अल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनकी जौजा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनके बेटे हसनैन अलैहिस्सलाम और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं। मुझे ताज्जुब होता है और फ़ख्र भी मुसलमानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखकर आका की एक आवाज़ पर गैब पर ईमान ले आए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुसलमानों ने माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है लेकिन दिखाई नहीं, फिर भी मुसलमानों ने माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो, लोगों ने माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास जिब्राइल आते हैं लेकिन कभी दिखाया नहीं, फिर भी मुसलमानों ने माना। रसूलुल्लाह ने सारे नबी मनवाए, किताबें मनवाई, अरकान मनवाए, नमाज के तरीके से लेकर हज के तरीके तक सब मनवाया, और लोग बिना देखे से अपने आका की बात पर मानते चले गए। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने का पूरा वाक़या बयान किया।
न जन्नत दिखाई न दोजख पर मनवाई, और लोगों के ईमान को सलाम कि लोगों ने मान लिया। हश्र के दिन से लेकर कुल सिरात तक सब माना, यहाँ तक कि एक वाहिद खुदा को बिना देखे मानकर सजदा भी कर दिया। सलाम है इस मोहब्बत पर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रसूलुल्लाह ने गदीर पर जिसके दोनों हाथों को थाम कर हाथों को बुलंद फरमा कर दिखाया, जिसे मनवाया, लोगों ने बस उसे ही नहीं माना, या माना भी तो उस हद तक नहीं माना जिस हद तक मानने का हुक्म था। हमने तौहीद तो समझी, रिसालत भी समझी, मगर विलायत को भुला दिया। अगर आप अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर चलना वाला मोमिन बंदा देखना चाहते हैं तो तारीख में बहुत नाम मिलेंगे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के जितना हक पर चलने वाला अल्लाह का बंदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफादार दूर दूर तक नहीं मिलेगा। खामोश है तो लगता है इस्लाम अली है, खामोश है तो लगता है इस्लाम अली है, बोल पड़ता है तो लगता है कुरान अली है, बोल पड़ता है तो लगता है कुरान अली है। हम सबका दावा की ईमान हमारा, हम सबका दावा की ईमान हमारा, ईमान का दावा है कि ईमान अली है, ईमान का दावा है कि ईमान अली है। वसी मोहम्मद है वो इमामों का इमाम, वसी मोहम्मद है वो इमामों का इमाम। विलायत है उसकी वलियों का सुल्तान अली है, विलायत है उसकी वलियों का सुल्तान अली है। जहरा बतूल तोहफा है रब का नबी के वास्ते, जहरा बतूल तोहफा है रब का नबी के वास्ते। जहरा भी कहती है कि मेरी जान अली है, जहरा भी कहती है कि मेरी जान अली है। रब के हुक्म से काबा बना है खुदा का घर, रब के हुक्म से काबा बना है खुदा का घर। उस घर के अंदर देख लो मेहमान अली है, उस घर के अंदर देख लो मेहमान अली है।